हाय किड्स। आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर यूनामिनी एंड बुशी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बोला गया है कि स्टोरी पढ़ के ये जो पॉइंट्स आपको दिए हैं इन्हें डिस्क्राइब करना है शॉर्ट में। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है यूनामिनी चिरू ऑफ ओकिनावा। तो उसके बारे में क्या बताया गया है हमें चैप्टर में? शी वॉज द मोस्ट एडमायर्ड गर्ल इन ओकिनावा फॉर हर इंटेलिजेंस, ब्यूटी एंड एक्सेप्शनल स्किल्स इन कराटे. She was strong, independent, and determined to marry only a man who could defeat her in a fair fight. कोजो के बारे में क्या बताया गया है? कोजो was a big, strong man who challenged Yonamini to a fight for her hand in marriage. However, he played foul by attacking Yonamini when she bowed. She easily defeated him by twisting his arm, making him limp away in defeat. Bushikiyo was a skilled warrior, trained under the karate master Sakugawa and served as a personal guard to King Shoko. He was smart and honorable, and he won Yonamini's hand in marriage by defeating her in a fair fight. Next question है, discuss and write 1 to 2 lines about the following. Yonamini's idea about marriage. तो क्या था उसका आइडिया शादी के बारे में? She believed she would only marry a man who could defeat her in a fair fight, reflecting her desire for a partner who was her equal in strength and skill. How Bushi defeated Yonamini in the wrestling match? Bushi defeated Yonamini by taking advantage of a brief pause during the match and delivering a swift punch that brought her down. Why Bushi told Yonamini not to travel at night? Because he was concerned about her safety, mentioning that there were bandits on the road. Yonamini's fight with Bushi disguised as a bandit. When Bushi disguised himself as a bandit and attacked Yonamini, she swiftly overpowered him, tying him to a tree without realizing it was her husband. The lesson that Bushi learned not to underestimate anyone, especially not a woman, realizing that strength and skill were not determined by gender. Divide the story into different sections to show the different events and time periods in it. Give a suitable title to each section. तो आपको ये जो स्टोरी है इसे डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना है और हर सेक्शन को जो है एक टाइटल देना है। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे किया है। तो पहला जो सेक्शन है स्टोरी का वो है योनामिनीज फादर्स वरीज, उसके पिताजी की चिंताएं। Yonamini's father is worried about finding a man who would marry his strong and skilled daughter. Next section है Kojo's defeat. Kojo challenges Yonamini but is defeated for breaking the rules. Third होगा Bushi's challenge and victory. Bushi challenges Yonamini and defeats her in a fair fight leading to their marriage. Next होगा Bushi's concern for Yonamini. Bushi advises Yonamini not to travel at night and later disguises himself as a bandit to teach her a lesson. Next section होगा Yonamini defeats the bandit. Yonamini fights off the disguised Bushi, tying him to a tree. And last section hoga Bushi learns his lesson. After Yonamini realizes she had tied up her husband, they both laugh and Bushi admits he learned not to underestimate her. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है राइट अ शॉर्ट मोनोलॉग यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज. राइट डाउन द मोनोलॉग एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास. तो ये दो आइडियाज आपको दिए गए हैं, इनमें से किसी एक आइडिया पे आपको मोनोलॉग लिखना है. नाउ मोनोलॉग क्या होता है? जब हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं तो उसे हम मोनोलॉग कहते हैं. डायलॉग होता है जब हम किसी से बात कर रहे हो, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप मुझसे कुछ कह रहे हो, ये हुआ डायलॉग. बट मैं जब अपने दिमाग में कुछ सोचूं, अपने आप से ही बात कर रही हूँ, तो वो हो जाता है मोनोलॉग. तो आपको ये दो सिचुएशन दी गई हैं, इनमें से किसी एक के ऊपर आपको मोनोलॉग लिखना है. तो मैंने दोनों पे लिखा है, आप कोई भी चूज करके अपनी बुक में लिख सकते हो. तो पहला जो हमें सिचुएशन दिया गया है वो है योनामिनीज फादर वरिंग अबाउट गेटिंग हर मैरिड. तो वो जो है चिंता कर रहे हैं कि उसकी शादी कैसे होगी योनामिनी की. What am I to do with Yonamini? So strong, so skilled, and so stubborn. She insists on marrying only the man who can defeat her in a fight. But who could possibly do that? Suitors come, but they all leave in defeat. She is as fierce as a warrior, yet I worry, will she end up alone? I want her to have a husband who cares for her, not one who fears her strength. But where will I find such a man? How will I ever find someone worthy of her?
तो ये जो है वो अपने आप से अपने दिल में सोच रहे हैं कि उनकी लड़की जो है वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्किल्ड है, उसे कैसे कोई अच्छा पति मिलेगा। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक दिया गया है, बुशी डिस्गाइज्ड एज अ बैंडिट। बुशी जो है वो एक चोर की तरह जो है इस समय दिख रहा है, उसने चोर का भेष ले रखा है। तो वो क्या सोचेगा अपने दिमाग में, आई होप शी लर्न्स हर लेसन टुनाइट, शी इज स्ट्रांग नो डाउट बट हर ओवर कॉन्फिडेंस वरीज मी, अ वुमन नो मैटर हाउ स्किल्ड shouldn't wander alone at night. If I catch her off guard, maybe she will think twice next time. But what if she is too strong even now? No, I must teach her. This is for her own good. तो वैसे जो है अपने दिमाग में खुद से सोचेगा कि उसे जो है अपनी वाइफ को एक लेसन सिखाना है, इसलिए जो है वो एक डाकू का भेष लेके यहाँ पे आया है। तो उसे जो है लेसन सिखाना जरूरी है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे दो मोनोलॉग्स। आपको समझा ना मोनोलॉग क्या होता है? जब हम अपने आप से अपने खुद से बात कर रहे हो अपने दिमाग में, या फिर जोर से भी कर सकते हैं, बट वो बात हम अपने आप से ही कर रहे हैं, किसी और से नहीं कर रहे हैं, तो वो हो जाता है मोनोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको ग्रुप्स बनाने हैं और डिबेट करना है इन टॉपिक्स के ऊपर। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनके प्रोज यानी इनके फेवर में आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, और इनके अगेंस्ट में आपको यानी कॉन्स में जो है कि ये जो टॉपिक है इसके अगेंस्ट में आप क्या 3 पॉइंट लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैंने 3 3 पॉइंट्स जो है हर टॉपिक के प्रोज और कॉन्स में लिखे हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा, बॉयज कैन नॉट कुक और डू एनी हाउस वर्क। लड़के जो है वो खाना नहीं बना सकते हैं और घर का कोई काम भी वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके फेवर में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं यानी जो बरसों से चले आ रहे हैं रोल हैं कि लड़के जो है वो घर का काम नहीं करते हैं, औरतें ही करती हैं, तो उसके हिसाब से जो है लड़के ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सदियों से यही चला आ रहा है। एक पॉइंट ये हो सकता है कि जो लड़के हैं उनके अंदर इंटरेस्ट भी नहीं होता है, एक्सपीरियंस भी नहीं होता है घर का काम करने का या कुकिंग करने का। और तीसरा हो सकता है कि जो हमारी संस्कृति है वो भी जो है, जो हमारी सोसाइटी है वो भी इस चीज को बार बार जोर दे के कहती है कि घर का काम करना औरतों का ही जिम्मेदारी है, उन्हीं का काम है, ये आदमियों का नहीं है ना। सेम टॉपिक के अगेंस्ट में हम क्या कह सकते हैं, बॉयज आर इक्वली केपेबल ऑफ लर्निंग एंड परफॉर्मिंग हाउस वर्क एंड कुकिंग। लड़के भी जो है उनको भी उनके अंदर भी इतना स्किल्स है, वो भी जो है कर सकते हैं, वो भी खाना बनाना सीख सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट? लड़के भी कर सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं। और इससे क्या है, इससे एक चीज ये भी होगी कि हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे, यानी हम जो है समाज में ये भावना, ये मैसेज जो है पहुंचाएंगे कि जेंडर इक्वालिटी है, लड़के लड़की एक समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के घर का काम नहीं कर सकते लड़कियां ही करेंगी, नहीं, अगर दोनों करेंगे तो जेंडर इक्वालिटी जाएगी, राइट? सबको पता चलेगा कि लड़का लड़की एक समान है। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि ये जो है ये एक एसेंशियल लाइफ स्किल है, जरूरी है, राइट? खाना बनाना हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि खाना तो हम सब खाते हैं ना, तो खाना बनाना भी आना चाहिए, ये तो लाइफ स्किल है। जैसे कि जो है किसी को तैरना आना चाहिए, चलना आना चाहिए, साइकिल चलानी आनी चाहिए, कोई गाड़ी चलानी आनी चाहिए, ये सब लाइफ स्किल है, राइट? जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि इन सब की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही खाना बनाना भी जो है एक एसेंशियल लाइफ स्किल है, इसमें आपके जेंडर का कोई रोल नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़का हो या लड़की हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि लड़कियां जो है वो हर वो काम नहीं कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसके फेवर में हम कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़के और लड़कियों के बीच में फिजिकल डिफरेंस है। लड़कियां जो हैं उनकी जो बिल्ट है वो जैसे बनी हुई है वो लड़कों से अलग है, तो इसलिए हो सकता है इस वजह से वो सेम काम नहीं कर सकती हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं यानी जो सदियों से चला आ रहा है कि जो है लड़के जो है वो बाहर का काम करेंगे, लड़कियां जो है घर का करेंगी, लड़के जाके शिकार करेंगे, लड़के जो है बाहर जाके जो है दुनिया में बाकी के काम करेंगे, पैसा घर लाएंगे, लड़कियां घर चलाएंगी। तो जो ट्रेडिशनल रोल है उसके हिसाब से भी लड़कियां जो है वो काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो सदियों से चला आ रहा है। तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो है कुछ काम जो है वो मेल डोमिनेटेड ही थे। तो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जब स्टोन एज थी तो जो शिकार करने का काम था वो लड़कों का होता था, राइट? लड़कियां घर में जो है केव में जो है वो आग जला के जो है वो खाना बनाती थी, बट शिकार करके कौन लाता था? आदमी लाता था। ऐसे ही जो है जो सेना में लड़ते थे जो लोग, जो पहले जो सेनाएं होती थी उसमें जो है वो खाली लड़के होते थे। तो देखा जाए तो हिस्ट्री भी यही कहती है कि लड़के जो है वो कुछ काम ऐसे करते हैं जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं।
ना इस टॉपिक के अगेंस्ट में हम क्या कह सकते हैं कि लड़कियां जो है वो भी उतनी ही केपेबल हैं, उनके अंदर भी उतनी ही क्षमता है जितनी लड़कों के अंदर है। तो लड़के और लड़कियां जो है किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं। लड़कियां भी आज के टाइम में जो है लड़ने के लिए जाती हैं, प्लेन्स चलाती हैं, सब कुछ करती हैं। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि अगर लड़के लड़कियां सेम टाइप के काम करेंगे तो उससे जेंडर इक्वालिटी भी आएगी, राइट। अगर मैं बोलूं कि नहीं मैं भी जाके रेसलिंग कर सकती हूँ, या फिर मैं भी जो हूँ प्लेन उड़ा सकती हूँ, मैं भी आर्मी में जा सकती हूँ, तो जेंडर इक्वालिटी आ रही है, राइट। हम बता रहे हैं लड़के लड़की एक समान है, हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि बहुत सारी दुनिया में एग्जाम्पल हैं ऐसी औरतों के जिन्होंने जो है जो ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड एरियाज थे वहां पे उन्होंने अपना नाम बनाया है। जैसे कि देखा जाए तो रूलिंग में पहले सिर्फ राजा होते थे, फिर रानियां भी आ गई, उन्होंने भी जो है रूल किया। फिर लड़ाई में देखिए, सेना में जो है पहले सिर्फ आदमी लड़ते थे, बट औरतें भी जाने लगी। अब आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तीनों जगह जो है वुमेन को भी लिया जाता है। तो जो भी ये फील्ड्स थी जो पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ मेल डोमिनेटेड है, सिर्फ आदमी ही इन फील्ड में जा सकते हैं, अब ऐसा नहीं है, अब औरतें भी यहाँ पे जाती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यू शुड नेवर लूज अ मैच। आपको कभी भी कोई गेम नहीं हारना चाहिए। तो इस टॉपिक के फेवर में हम कह सकते हैं कि अगर हम ऐसी सोच रखेंगे तो हमारे अंदर जो है बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगा। हमारे अंदर दृढ़ निश्चय आ जाएगा कि हम कभी हार ही नहीं सकते हैं, तो हमें जीतना ही है। एक और पॉइंट हो सकता है कि अगर हम ये सोचेंगे कि हमें जीत चाहिए, तो इससे जो है हमारा पर्सनल और टीम का भी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि मैं इसी एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही हूँ कि मुझे जीतना ही है, राइट। तो मेरी टीम भी जो है इम्प्रूव होगी, मैं भी इम्प्रूव होंगी। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि अगर हम जीतेंगे तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ेगा, राइट। जितना जीतोगे आप उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस टॉपिक के अगेंस्ट में हम क्या क्या कह सकते हैं कि लूजिंग जो है वो नेचुरल पार्ट है, राइट। सीखने का, ग्रो करने का नेचुरल पार्ट है। कभी कभी हम जीतते हैं, कभी हारते हैं, तो हारना कोई इतनी खराब बात नहीं है। हारना भी जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, उससे भी जो है आपको सीख मिल रही है, आपको आपकी गलतियों का, आपकी कमियों का पता चल रहा है, और आपको समझ में आ रहा है कि आप कैसे जो है अपनी कमियों को बेहतर करके ग्रो कर सकते हो। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी कि आप ये सोचो आप हमेशा जीतोगे, इससे जो है आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो इतना स्ट्रेस जो है आपको लाइफ में नहीं रखना चाहिए कि मैं हमेशा जीतूंगा ही जीतूंगा। आप जीतने का सोचो, बिल्कुल ट्राई करो जीतने का, बट इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जीत और हार दोनों जो है कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। जरूरी नहीं है आप हमेशा जीतो, कभी हार भी हो सकती है, और हार भी जो है वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। तीसरा हो सकता है कि जब हम जीतते हारते हैं तो उससे हमारे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप भी आ रही है। जब हम हार रहे हैं तो हमारे अंदर एक हम्बलनेस आ रही है, राइट। कि हम जो है जिंदगी से सीख रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है कभी कभी मैं भी हार सकती हूँ, मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं इतनी तेज नहीं हूँ, दुनिया में मुझसे भी अच्छे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उससे भी आप बहुत ज्यादा वैल्यू सीख रहे हो, क्योंकि अगर आप हमेशा जीतते रहो तो हो सकता है आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, आप जो है आप बहुत ही जो है एरोगेंट हो जाओ। तो उस चीज को भी करेक्ट करने के लिए जरूरी है कि आप कभी हार जाओ। तो जीत और हार जो है वो इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप जीते तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप हारे तो उस चीज का इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वो सिर्फ एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया गया है यू शुड एडमिट योर मिस्टेक्स। आपको अपनी गलतियां माननी चाहिए। तो इस टॉपिक के फेवर में हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम अपनी गलती मानेंगे किसी के सामने, तो इससे हमारे बीच में जो है भरोसा पैदा होगा, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, राइट। लोग हम पे भरोसा करेंगे, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिसने अगर कभी गलती करी तो मान ली, तो ऐसा नहीं है मैंने कुछ छुपाया या झूठ बोला, तो मेरे ऊपर भरोसा बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इससे मेरी पर्सनल ग्रोथ भी बढ़ेगी। मैं जो हूँ एक्सेप्ट कर रही हूँ अपनी गलतियों को, यानी मैं उन्हें सुधारने की अब कोशिश करूंगी। अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँ कि मैंने कुछ गलत किया है, तो फिर मैं कभी सुधारने की उस चीज को कोशिश ही नहीं करूंगी। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इस चीज से ये भी डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उस चीज की जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ, तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ। इस टॉपिक के अगेंस्ट में हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम अपनी गलतियों को एडमिट कर लें, किसी के सामने मान लें, तो हो सकता है लोग हमें जज करें, या फिर हो सकता है उसके कुछ परिणाम हो, रिपरकशंस, यानी उस चीज के कुछ परिणाम हो सकते हैं। यानी अगर मैंने कुछ गलत किया और मैंने आपको बोल दिया कि मैंने ये किया, तो आप मुझे कोई पनिशमेंट भी दे सकते हो, तो वो चीज का जो है कुछ
परिणाम भी हो सकते हैं जो कि अच्छे ना हो। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि लोग ये भी समझ सकते हैं कि मैं अपनी गलती मान रही हूँ, मतलब मैं कमजोर हूँ, तो कुछ लोग उसे साइन ऑफ वीकनेस की तरह भी ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो सकता है कुछ सिचुएशंस में जो है उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि मैंने अपनी गलती मानी और मुझे जो है बढ़ावा देने की बजाय आप मुझे इतनी सजा दे दो कि फिर मैं दोबारा कुछ कर ही ना पाऊं, मेरा कॉन्फिडेंस ही बिल्कुल चला जाए। तो ये जो पॉइंट है इसके प्रोज और कॉन्स के ये तीन तीन पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि आपकी जो लाइब्रेरी है वहां पे जाके जो है आपको जापान, चाइना और कोरिया की जो है कुछ क्लासिक पॉपुलर स्टोरीज जो है वो रीड करनी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टोरीज के नाम दिए हैं, जापान, चाइना और कोरिया तीनों के। आप ये जो है इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, आपकी लाइब्रेरी में मिल जाए तो भी सर्च कर सकते हो, और ये जो है आप पढ़ो, ये बहुत ही अच्छी स्टोरीज हैं। तो जापान की जो स्टोरीज हैं वो है द टेल ऑफ गेंजी, क्वाइडान स्टोरीज एंड स्टडीज ऑफ स्ट्रेंज थिंग्स एंड राशोमोन एंड अदर स्टोरीज। ये तीन जो है जापान से हैं। चाइना की कुछ स्टोरीज जो बहुत ही पॉपुलर हैं वो है जर्नी टू द वेस्ट, ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर, द आर्ट ऑफ वॉर। एंड कोरिया की द स्टोरी ऑफ होंग गिल्डोंग, द टेल ऑफ चुनयांग, द मेमोइर्स ऑफ लेडी ह्यग्योंग। तो ये जो स्टोरीज हैं ये अगर आपको आपकी लाइब्रेरी में मिल जाएं तो आप जरूर पढ़िए, नहीं तो इंटरनेट पे भी आप ढूंढ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, इनसे जो है आपको बहुत सारे लेसन्स भी सीखने को मिलेंगे। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.